میری ماں روز ایک بنگلے پر ایک 70 سالہ بوڑھے کے لیے کھانا بنانے جاتی۔ وہ بوڑھا اس بنگلے پر اکیلا رہتا تھا۔ ایک روز ماں نہ کی تو وہ ماں کا پتہ کرنے ہمارے گھر آ گیا اور مجھے بری نظر سے دیکھتا رہا۔ اچانک ایک ہفتے بعد وہ بوڑھا مر گیا اور مرتے وقت اس نے اپنا بنگلہ میری ماں کے نام کر دیا۔ اس کے مرنے کے بعد ہم سب اس بنگلے پر رہنے لگے۔ میرے باپ نے جھوٹ بول کر میرا رشتہ ایک بہت بڑے خاندان میں کر دیا۔ پہلی رات دولہے کو دیکھا تو میری چیخیں نکل گئی۔ میں اسی رات بھاگ کر گھر آ گئی اور پھر ماں نے میری دوسری شادی کر دی، مگر اس بار جو میرے دلہے نے میرے ساتھ کیا وہ تو میری روح تک زلزلہ گئی، کیونکہ اس نے مجھے، میرا نام فوزیہ ہے، ہم 3 بہن بھائی تھے، ہمارا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ محلے کے لوگ ختم یا نیاز دے جاتے تو ہم پیٹ بھر کر کھا لیتے۔ اکثر عورتیں اپنے پرانے کپڑے بھی ہمیں پہننے کو دے جاتی۔ وہ داڑھی کو سائڈ پر رکھ کر ہم استعمال شدہ چیزیں صبر و شکر سے پہن لیتے تھے، ورنہ پھر فاقوں بری زندگی گزارتے۔ ماں پڑھی لکھی نہ تھی اور غربت کی وجہ سے ایک بنگلے پر کھانا بنانے جاتی تھی۔ اس بنگلے میں صرف ایک 70 سال کا بوڑھا رہتا تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی اور اس کی اولاد دوسرے ملک میں رہتی تھی۔ ایک ماں تھی جنہیں ہماری فکر تھی۔ باپ عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ ہمارا ایک کمرے کا کرائے کا گھر تھا۔ محلے میں سب گھر چھوٹے ہی تھے، یہ غریب علاقہ تھا۔ دادا کی وفات کے بعد ابا نے ٹی وی، فریج اور گھر تک بیچ دیا۔ اب حال یہ تھا کہ ایک ہی کمرے میں سب رہ رہے تھے۔ ماں کی تنخواہ تو کرایہ دینے اور بل دینے میں نکل جاتی۔ کبھی نیاز تو کبھی ماں جہاں کام کرتی وہاں سے کچھ کھانے کو لے آتی۔ میں اور میرے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ ماں نے سختی سے ہمیں اسکول جانے کی تنقید کر رکھی تھی۔ ہم تینوں سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ ماں ہمیں پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی۔ ہم تینوں بہن بھائی پڑھنے میں اچھے تھے۔ بھائی پوزیشن لیتا تھا اور میں بھی ہر بار اچھے نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ ماں نے بھائیوں کو کوئی دوست بنانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اسکول سے مسجد اور مسجد سے سیدھا گھر آنے کا کہا تھا۔ تربیت کے معاملے میں وہ کافی سخت تھی۔ وہ انہیں ڈیل دے کر ابا کی طرح یاش نہیں بنانا چاہتی تھی۔ دادی کافی بار بھائیوں کو پستے پشت بگاڑنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن ماں اس معاملے میں انہیں بھی سنا دیتی تھی۔ ابا اکثر ماں سے لڑتے تھے اور اگر ماں پیسے نہ دیتی تو ہمارے اسکول بیگ اور کپڑے بھی پھاڑ دیتے۔ بھائی اور مجھ پر بھی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ بچپن سے ہی ہم خوفزدہ اور ڈرپوک بچے تھے۔ گلی کے بچے بھی ہمیں مار جاتے تھے۔ ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی تھی وہاں یہ سب عام تھی۔ وہاں عام بچوں جیسی زندگی نہیں گزاری تھی۔ کھانے کی فکر، مار پیٹ اور گالی گلوچ، یہ سب تو عام تھا۔ اسکول میں بچوں کے ٹیفن دے کر اکثر بھوک جاگنے پر ہونٹوں پر زبان پھیر کر پانی سے پیٹ بھر لیتے۔ ابا کو بگاڑنے میں سارا قصور دادا دادی کا تھا۔ دادا دادی کے ہاں جب شادی کے 10 سال بعد اولاد پیدا ہوئی تو انہوں نے ابا کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ دادا نے ابا کو مہنگے اور بڑے اسکول میں داخل کروایا، لیکن ابا پڑھ نہ سکے۔ وہ آئے دن اسکول سے بھاگ جاتے۔ آئے دن اسکول سے ابا کی شکایت آتی رہتی۔ دادی ابا کے برے کاموں پر بڑی صفائی سے پردہ ڈال دیتی تھی۔ ابا سے تو میٹرک پاس نہ ہوئی تھی۔ آخر تنگ آ کر اسکول والوں نے انہیں نکال دیا تھا۔ اس کے بعد سگریٹ پینا، جوا کھیلنا، لڑکیاں تاڑنا، گلی میں کھڑے ہو کر گانے سنانا ابا کا مشغلہ تھا۔ یہ تو دادا کا ذاتی مکان تھا، ورنہ محلے والے ابا کو نکال کر باہر پھینکتے۔ دادا نے 2-3 بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ابا کی زبان درازی اور دادی کی پرواداری نے انہیں چپ کروا دیا۔ 1-2 بار پولیس پکڑنے آئی تو بڑی مشکل سے دادا نے اپنی پہچان نکلوا کر ابا کو چھڑوا لائے تھے۔ دادا چونکہ سرکاری ملازم تھے تو پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دادا سے چھپا کر دادی ابا کی جیب بھرتی رہتی تھی۔ ابا کی شادی بھی ماں سے دھوکے سے کروائی گئی تھی۔ ابا کو ماں کے غیر معمولی حسن سے عشق ہو گیا تھا۔ ابا کے لوفر پن سے تو سب واقف تھے۔ خاندان میں تو کسی نے لڑکی دینی نہیں تھی، اس لیے ابا جیسے مناسب شکل و صورت رکھنے والے یاش مرد کی اتنی خوبصورت بیوی دیکھ کر لوگ حیران تھے۔ ماں نے اپنی جوانی کے دن بڑی مشکل سے گزارے تھے۔ دادی نے جھوٹی تعریفوں سے نانی کو بہلایا تھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، پڑھائی کرتا ہے، جلدی سرکاری ملازمت لگ جانی ہے۔ نانی بولی نے بغیر جانچ پڑتال کیے اماں کا نکاح کروا دیا۔ شروع میں تو ابا ٹھیک رہے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی اصلیت سامنے آنے لگی۔ جو ماں سے دل بھر گیا تو ان کی عیاش محفلیں پھر عروج پر پہنچ گئی۔ دادا کی موجودگی میں وہ کوئی دوست گھر نہیں لاتے تھے۔ میری پیدائش پر دادا اور ماں کے سوا کوئی خوش نہ تھا۔ گھر میں اور کسی کو نام رکھنے کی زحمت نہ ہوئی اور نہ ہی انہوں نے میری ذات میں دلچسپی لی۔ دادا نے ہی میرا نام رکھا۔ ابا نے بیٹی پیدا کرنے پر ماں پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ وہ تو شکر دادا نے معاملہ خراب نہ ہونے دیا تھا۔ کہتے ہیں نا، اچھے لوگوں کو اللہ جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے، تو بس دادا کو بھی بلا لیا گیا۔ اماں کی شادی کے سال بعد ہی دادا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابا کو تو پھر پوری چھوٹ مل گئی۔ وہ دوست کر لاتے تو اماں کمرے کا دروازہ بند کر دیتی۔ آہستہ آہستہ جوئے میں گھر کا سارا سامان بیچ دیا۔ گھر تک جوئے میں ہار گئے تھے۔ اس کے بعد اماں کی زندگی جہنم بنانے میں دادی اور ابا نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ بھوک کی وجہ سے اماں کا سرخ گلابی چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ اب گزارا صرف دادا کی پینشن سے ہوتا تھا۔
माँ फिर से अमीर से होगी। इस बार बेटे की पैदाइश हुई तो दादी बहुत खुश थी, जबकि अब्बा को कोई परवाह ना थी। वो दोस्तों के साथ मगन रहते थे। फिर 2 साल बाद तीसरी औलाद हुई तो दादी का रवैया पोतों के बाद ठीक हो गया था, लेकिन अब्बा की बदमाशी दिन ब दिन बढ़ गई थी। जुआ खेल कर हारने के बाद वो दादी से जबरदस्ती पैसे निकलवाते थे। दादी भी अब पछताती थी, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अम्मा हालात से तंग आकर एक बंगले पर काम करने लगी थी। बंगले पर सिर्फ एक बूढ़ा रहता था, बस इसके लिए अम्मा को खाना बनाना होता था। बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर वो काम करती। अब भी अब्बा तंजिया और करदार कशी करने से बाज नहीं आते थे। नानी जो खुद गरीब थी, भला अम्मा क्या इनके दर पर जाकर बैठती। मोहल्ले के कुछ घरों से अम्मा के अच्छे ताल्लुकात थे। वो बुरे हालात में भी थोड़ी बहुत मदद कर देते थे। मैं स्कूल आते जाते बड़ी चादर ओढ़ कर जाती थी। बड़ी बड़ी गहरी आंखें, घनी पलके, फटकरी से गुलाब होंठ, दूध से सफेद रंगत, कम उम्र, ये सारे नए नए नक्शे माँ से ही चुराए थे। रोज स्कूल आते जाते गली के बदमाश लड़के एक जुआरी की बेटी कहकर छेड़ते थे। बाप जैसा मुहाफिज सहारा सार ना हो तो फिर हर बेटी का हाल यही होता है। काली चादर को ठीक करती मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंचती तो मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। माँ को भी यह सब बताया तो वो भी रो कर चुप हो गई थी। अब घर पर यह काम करने लगी थी। भूख से पेट की आंतें सुकड़ गई थी। एक रात माँ को इंतकाल आई कि नाना का इंतकाल हो गया है। माँ को जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन मैं घर पर ही रही थी। इन दिनों माँ की तबीयत भी खराब थी। फिर वो रह न सकी तो अब्बा की फात पर अपने घर चली गई थी। माँ जो पिछले 2 दिन से बंगले पर नहीं गई थी, इसलिए वो 70 साल बूढ़ा माँ की खबर लेने घर आ गया। माँ की गैर मौजूदगी में वो घर में घुस आया था। मैंने माँ के काम पर न आने की वजह भी बता दी थी, मगर वो फिर भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। वो मुझे बुरी निगाह से देख रहा था। इसकी गंदी नजरों से मुझे खौफ सा महसूस हो रहा था। वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा तो मैं 2 कदम पीछे हट गई थी। इसी वक्त मेरे भाई घर आ गए। मेरे भाइयों को देखकर वो बूढ़ा वापस चला गया। इस रोज अब्बा घर आए तो इनके हाथ में बिरयानी का बड़ा शॉपर था। वो बहुत खुश थे। पहली बार उन्होंने बगैर लड़े हम सबके साथ खाना खाया था। दादी के सदके वारे जाने लगी। फिर रोज रात अब्बा इनके लिए कुछ न कुछ खाने की चीज लाते। सबको यही लगा कि अब्बा सुधर गए हैं। फिर वो यही कहते कि वो मेहनत मजदूरी से वो खाना लाते हैं। जिसने सारी उम्र काम को हाथ न लगाया हो वो अब काम करेगा। माँ को इन पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन दादी अपने बेटे की हर बात पर ईमान लाई थी। इन्हें लगा कि अब्बा वाकई सुधर गए हैं। इनका मेरे साथ रवैया भी बेहतर था। अम्मा पे हाथ भी कम उठाते थे। अम्मा फिर से बंगले पर जाने लगी थी, मगर अम्मा को मैंने इस दिन वाली बात नहीं बताई थी, वरना अम्मा काम छोड़ देती और हमारे घर का चूल्हा बंद हो जाना था। भाई ने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। अम्मा ने मुझे भी प्राइवेट दाखिल करवा दिया, सिर्फ पेपर देने जाने थे। मैंने मैटर मुकम्मल कर लिया था। मैं बहुत खुश थी। एक रोज अम्मा काम पर गई तो इस बूढ़े की तबीयत खराब होगी। अम्मा ने जल्दी से अब्बा को बुलाया ताकि वो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाए। अब्बा इन्हें डॉक्टर के पास ले गए, मगर इनकी हालत बहुत खराब थी। इनका आखिरी वक्त आ चुका था। वो मरते वक्त अपना बंगला मेरी माँ के नाम कर गए थे। अब्बा ने इसका जनाजा पढ़ाया और इसके बाद बंगले पर कब्जा कर लिया। मोहल्ले के लोगों ने भी एतराज न किया। कोई वारिस होता तो पूछता। वैसे भी वो बूढ़ा खुद ये बंगला मेरी माँ के नाम कर गया था। हमारे भी माली हालात बहुत खराब थे। भाई बड़े हो रहे थे तो अब एक कमरे में भी रहना मुमकिन नहीं था। यूं हम इस घर में रहने लगे। हैरत की बात तो ये थी कि अब्बा रोज खुद भी नए कपड़े पहनते। पता नहीं इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे। अब्बा की तो जैसे कोई लॉटरी निकल आई हो। दादी तो खुश थी, लेकिन अम्मा मेरी दूर अंदेश थी। इन्हें गड़बड़ का एहसास हो गया था। इस बंगले में रहते हुए कुछ दिन गुजरे तो अब्बा ने मेरी शादी का फैसला कर लिया। वो चाहते थे कि मैं अपने घर की हो जाऊं। अम्मा के माली हालात वैसे भी बेहतर ना थे, इसलिए अम्मा ने भी रिश्ते देखने शुरू कर दिए। इसके कुछ दिन बाद ही एक बहुत ही अमीर घराने से मेरा रिश्ता आ गया। हम सब बहुत खुश थे। मुझे यकीन न आया कि मेरी किस्मत बदलने लगी है। लड़के वालों के घर से कुछ कुतूने आई थी। अम्मा ने पूछताछ करना चाहिए तो अब्बा ने कहा कि वो पहले सब कुछ पता करवा चुके हैं। लड़का शरीफ है और ये लोग मालदार भी है। अम्मा अब्बा की बात सुनकर खामोश होगी कि वो बेटी का बुरा थोड़ा चाहेंगे। अब्बा ने कहा कि ये घर हमारे लिए बहुत किस्मत वाला साबित हुआ है कि तुम्हारा रिश्ता इतनी अच्छी जगह तय हुआ है। हमारे दिन फिरने लगे थे। फिर मुझे भी अब्बा की बात ठीक ही लगी थी, वरना मेरा कहाँ इतने अमीर घर में रिश्ता होने की उम्मीद थी। वो लोग जहेज लेने की बजाय घर रोज कोई ना कोई महंगी चीज बेच देते थे। दादी ने तो फ्रूट की टोकरी पर कब्जा जमा रखा था। खुशी से वो फूले नहीं समा रही थी। मेरी शादी का जोड़ा भी ससुराल से आया था। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, माँ बेचैन रहने लगी थी। इनको बहुत अंदेशों ने घेर रखा था। कुछ दिन बाद ही मैं ब्याह कर अपने घर चली गई, लेकिन शादी की रात जब मैं दुल्हन बनी अपने शोहर का इंतजार कर रही थी और वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा।
क्योंकि मेरा शोहर तो इसी बंगले का मालिक था। इसे देखकर मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गई। ये कैसे हो सकता था? वो खबीसियत से खड़ा मुस्कुरा रहा था। कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने बूझ समझ कर ऊंचा ऊंचा शोर मचाना शुरू कर दिया तो इसने जोर से कहकर लगाया जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। इस कमरे में मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। वो मेरे करीब आने लगा तो मैंने छुरी उठा ली। मैं लड़की थी, कैसे समझती कि इसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत नहीं थी। वो 2 कदम दूर रुक कर कहने लगा कि मैंने तुम्हारी कीमत अदा की है। मैं तो पहली नजर में ही तेरा दीवाना हो गया था। तेरे बाप को तेरी मुंह मांगी रकम दी है और अपना बंगला भी तेरे बाप के कहने पर तेरी माँ के नाम किया था। मुझे अपने कानों पर यकीन आया। मुझे तो इल्म ना था कि मेरे बाप ने चंद पैसों की खातिर मुझे बेच दिया था। मेरा बाप जुए में बहुत बड़ी कीमत हार गया था। कुछ बदमाश लोग अब्बा को मारने आए थे। तभी अब्बा ने डर कर इस बूढ़े आदमी से मदद मांगी। मेरे इस बूढ़े शोहर ने बचा लिया और कीमत भी अदा कर दी। इसके बाद मेरे बाप के साथ मिलकर इस बूढ़े ने एक प्लान बनाया था और मरने का ड्रामा किया। मुझे पहली बार देखती बूढ़ा आदमी अपना दिल हार बैठा था। खासी तगड़ी रकम अब्बा को देता था। हर महीने का राशन वही हमारे घर भिजवाता था। जो औरतें हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी वो भी किराए की थी। मुझसे टांगों पर खड़ा रहना मुहाल था, लेकिन मुझे हिम्मत करनी थी। मुझे यहाँ से भागना था। इसकी गंदी हवस भरी नजरें मुझ पर जमी थी। मैं इसके बाजू पर वार करती बाहर भाग आई थी। बाजू पर हाथ रखे वो दर्द से कतराता गया। मुझे बुरा भला कह रहा था। ऐसे लगा कि जैसे मेरी आवाजें सुनकर कोई और भी बाहर आया था। मैं तेजी से सीढ़ियां उतरती बाहर जाने लगी। मेरा नया शोहर भी सीढ़ियां उतरता मुझे आवाजें लगाने लगा। और फिर एक जवान लड़का जो अचानक मेरे सामने आया। वो कभी मेरे शोहर को तो कभी मुझे देखता। वो मामला समझ गया था। वो पता नहीं कौन था। मैंने इसे पहली बार देखा था। मैं इसे धक्का देती घर से भाग आई तो वो मुझे न रोकने आया। इस बूढ़े में इतनी साकत ना थी कि मेरे पीछे गलियों में भागता। मैं फिर भागती हुई घर आ गई। अब्बा नशे में चूर सोया हुआ था। रात की इस पहर माँ मुझे देखकर हैरान होगी। इनके अंदेशे दुरुस्त साबित हुए थे। मैंने रोते हुए माँ को सारा मामला सुना दिया था। दादी भी मुंह पर हाथ रखे सब सुन रही थी। दादी ने कहा कि अब जैसा भी है तेरा शोहर है, वापस चली जा। तेरी वजह से अब हमारी जिंदगी भी बेहतर हो रही है। मैंने हैरत से अपनी दगी सफाक दादी को देखा। माँ मुझे खींचकर बाहर लाई और घर के पीछे स्टोर में ले गई। सख्ती से कहा कि वो जब तक न कहे मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना। दादी को भी डराया धमकाया, मुंह बंद करने को कहा। अगली सुबह वो बूढ़ा हमारे बंगले पर आ गया था। अब्बा को मेरा पेटा था। मेरी करदार कशी की थी कि कैसी लड़की ब्याह दी है। अम्मा होंठ बीजे खामोश बैठी रही। अब्बा ने माँ से पूछा कि वो घर आई थी क्या, तो अम्मा ने लाइल्मी जाहिर की। अब्बा भी पागलों की तरह मुझे ढूंढने लगे। शाम तक जगह जगह ढूंढ लिया लेकिन मैं कहीं ना मिली। पुलिस स्टेशन जा नहीं सकते थे वरना क्या कहते। शोर से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। मेरे भाई भी मुझे ढूंढ रहे थे ताकि वो मुझे इस आदमी से बचा सके। वो मेरे बाप की तरह नहीं थे। मोहल्ले की औरतें जासूसी के लिए हमारे घर आ रही थी कि ये कैसा शोर था कि वाकई तुम्हारी बेटी घर से भाग की है। माँ खामोश रही। रात की तन्हाई में जब सब सो गए तो माँ एहतियात से स्टोर में आई और मुझे खाने को रोटी देगी। साथ कुछ पैसे भी दिए और कहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और एक पता दिया कि इस जगह पर इनकी दूर की खाला रहती है, तो वहाँ पर चली जाओ। रात को मैं भाग गई। मुझे अम्मा की खाला के घर रहते हुए 5 माह हो गए थे। वो बहुत नेक थी, नमाज रोजे की पाबंद थी, अच्छे खाते पीते घर से थी। अल्लाह ने हर चीज से इन्हें नवाजा था सिवाय औलाद के। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। औलाद की तरह मुझे प्यार करती थी। मोहल्ले के बच्चे भी इनके पास पारा पढ़ने आते थे। इनके घर में बड़ा दीनी माहौल था। मुझे भी इनका काम करना पसंद था। एक रोज माँ का फोन आया कि सुबह सुबह दादा और अब्बा की लड़ाई हुई है। अब्बा ने दादी का सर दीवार पर मारा जिससे इनकी मौत हो गई है। तरबियत से लापरवाही का नतीजा दादी ने भुगत लिया था। घर में दोबारा फाके होने लगे थे। भाई मजदूरी करने लगे थे। अब्बा को पुलिस पकड़कर ले गई थी। कोई बचाने वाला नहीं था। अब्बा पर पहले भी चोरी के बहुत केस थे। 1 साल मजीद ऐसे गुजर गया। हैरत की बात तो ये थी कि मेरा वो बूढ़ा शोहर कभी दोबारा दरवाजे पर नहीं आया था, वरना हमें लगा था कि वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं अब तक इसके निकाह में थी। भाइयों ने कहा कि वो अदालत में खुला का नोटिस जारी करते हैं, लेकिन माँ ने कहा कि अदालत के चक्कर लगाने से मजीद बदनामी होगी। और फिर एक रोज इस बूढ़े ने खुद ही तलाक के कागजात हमें भेज दिए थे। मैं बहुत खुश हुई कि हालात बेहतर होने लगे हैं। माँ से जिद करके मैं वापस अपने घर आ गई थी। भाई कमाने लगे थे। माँ ने फिर से मेरी शादी का सोच लिया, पर इस बार मैंने इन्हें गुस्से से मना कर दिया कि मुझे किसी किस्म की कोई शादी नहीं करनी। लेकिन आखिर कुछ अरसे बाद वो लोग मुझे मना ही चुके थे। इस बार हमें पूरी छानबीन कर रही थी। रिश्ते वाले सीधा आकर यही सवाल पूछते कि बाप जेल क्यों गया है और पहली तलाक की वजह क्या थी। माँ कोई जवाब न देती तो इनकार कर जाते। एक रोज एक
बुजुर्ग खतून आई तो वह बेजार हो चुकी थी, लेकिन इस बुजुर्ग खतून ने कोई ऐसा सवाल न किया और फिर जाते जाते हाँ कर गई। भाई लोगों ने पूछताछ करवाई तो मालूम हुआ कि इनका बेटा पुलिस में है और ये लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत सोच विचार के बाद अम्मा ने हाँ कर दी। दोबारा शादी की तैयारियां होने लगी। कुछ दिन बाद मैं ब्याह कर अपने घर चली गई। इस बार मैं पहले से ज्यादा खौफजदा थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला तो दोबारा हैरन ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा कि इस बार फिर से मेरे साथ अजीब खेल खेला जा रहा है। मेरे चेहरे पर घबराहट देखकर मेरे शोहर ने कहा कि आप मुतमिन रहे, मैं आपके सारे खदशात दूर कर दूंगा। असल में वो मेरे साबका शोहर का भतीजा था। मेरी शादी की रात वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। वो अपने चाचा की याश तबीयत से वाकिफ था, इसलिए इसने मुझे जाने दिया था। फिर उसने मेरी मासूमियत को देखते हुए मेरी मदद करने का सोचा। जब मेरे साबका शोहर ने मेरे घर आकर वलवला किया था, इसके चंद रोज बाद ही मेरे दूसरे शोहर ने अपने चाचा पर बहुत सारे केस करवा दिए और कहा कि जब तक वो मुझे तलाक नहीं देगा इसे जेल से रहाई नहीं मिलेगी। मुझे पता था कि मेरा साबका शोहर कोई शरीफ इंसान ना था, इसी वजह से मुझे तलाक दे चुका था। अब मुझे सारा मामला समझ में आ गया था। मैंने हैरत से अपने दूसरे शोहर की तरफ देखा कि कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं। एक मेरा बाप था जिसने मुझे बेच दिया, फिर शोहर ऐसा मिला कि जिंदगी नए मोड़ पर आ गई। अब ये शख्स था कि जिसने मुझे न सिर्फ गलत लोगों के चंगल से निकाला बल्कि मुझसे निकाह करके मुझे एक नई जिंदगी भी दी थी। मेरा शोहर मेरी बहुत इज्जत करता था। मैं अपने शोहर की बहुत मशहूर थी। मेरे शोहर ने मेरे भाइयों को भी काम दिलवाने में काफी मदद की थी। मैं आज एक बड़े बंगले की मालिक बन गई थी। मेरे शोहर ने मेरा FSC में दाखिला करवा दिया। मेरी सास बहुत अच्छी थी। मैं पूरी कोशिश करती रही कि इन दिनों शिकायत का मौका न मिले। मोहल्ले में इनकी बहुत इज्जत थी। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। माँ भी मेरी तरफ से मुतमिन थी। जिंदगी जहन्नम बनाने में दादी और अब्बा ने कोई कसर न छोड़ी थी। भूख की वजह से अम्मा का सुरख गुलाबी चेहरा मरझा चुका था। अब गुजारा सिर्फ दादा की पेंशन से होता था। माँ फिर से अमीर से होगी। इस बार बेटी की पैदाइश हुई तो दादी बहुत खुश थी, जबकि अब्बा को कोई परवाह न थी। वो दोस्तों के साथ मगन रहते थे। फिर 2 साल बाद तीसरी औलाद हुई तो दादी का रवैया पोतों के बाद ठीक हो गया था, लेकिन अब्बा की बदमाशी दिन ब दिन बढ़ती गई। जुआ खेलकर हारने के बाद वो दादी से जबरदस्ती पैसे निकलवाते थे। दादी भी अब पछताती थी, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अम्मा हालात से तंग आकर एक बंगले पर काम करने लगी थी। बंगले पर सिर्फ एक बूढ़ा रहता था, बस इसलिए अम्मा को इसका खाना बनाना होता था। बड़ी मुश्किल से वो अपनी इज्जत बचाकर वो काम करती। भाभी अब्बा तंजिया का दाज कसी बार करने की कोशिश, लेकिन अब्बा की जुबान दराजी और दादी की परवाहदारी ने इन्हें चुप करवा दिया। 1-2 बार पुलिस पकड़ने आई तो बड़ी मुश्किल से दादा ने अपनी जान पहचान निकलवा कर अब्बा को छुड़वा लाए थे। दादा चूंकि सरकारी मुलाजिम थे तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। दादा से छुपा कर दादी अब्बा की जेब भरती रहती थी। फिर अब्बा की शादी भी माँ से धोखे से करवाएगी। अब्बा को माँ के गैर मामूली हुस्न से इश्क हो गया था। अब्बा के लोफरपन से सब वाकिफ थे। खानदान में तो किसी ने लड़की नहीं देनी थी, इसलिए अब्बा जैसे मुनासिब शक्ल सूरत रखने वाले याश मर्द की इतनी खूबसूरत बीवी लोग देख कर हैरान थे। माँ ने अपनी जवानी के दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। दादी ने झूठी तारीफों से नानी को बहलाया था कि इनका इकलौता बेटा है, पढ़ाई करता है, जल्दी सरकारी मुलाजिम मिल जानी है। नानी बोली ने बगैर कोई जांच पड़ताल किए अम्मा का निकाह कर दिया। मैंने इन्हें सब सच बता दिया। इनके दिल में भी मेरे शोहर की इज्जत मजीद बढ़ गई थी। एक रोज मेरे शोहर ने बताया कि जेल में सजा के दौरान मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है। बहुत अफसोस हुआ था, जैसा भी था वो मेरा बाप था। भाइयों को भी काफी अफसोस हुआ था, जैसा भी था वो मेरा बाप था। भाइयों ने ही आखिरी रस्मात करवाई। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। मेरी शादी को 3 साल होने को थे। अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा। मेरा शोहर भी बेटी की पैदाइश पर बहुत खुश था। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ तकसीम की गई। मुझे खुशी थी कि मेरी बेटी की किस्मत मेरी जैसी ना थी। मेरे भाइयों की भी माँ ने शादियां कर दी थी। भाभियां भी बहुत अच्छी थी। मेरे भाई और भाभियां अम्मा का बहुत ख्याल रखते थे। आज हम सब अपने घर में बहुत खुश थे। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। हैरान थे। माँ ने अपनी जवानी के दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। दादी ने झूठी तारीफों से नानी को बहलाया था कि इनका इकलौता बेटा है, पढ़ाई करता है, जल्दी सरकारी मुलाजिम मिल जानी है। नानी बोली ने बगैर कोई जांच पड़ताल किए अम्मा का निकाह कर दिया। मैंने इन्हें सब सच बता दिया। इनके दिल में भी मेरे शोहर की इज्जत मजीद बढ़ गई थी। एक रोज मेरे शोहर ने बताया कि जेल में सजा के दौरान मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है। बहुत अफसोस हुआ था, जैसा भी था वो मेरा बाप था। भाइयों को भी काफी अफसोस हुआ था, जैसा भी था वो मेरा बाप था। भाइयों ने
मैंने ये आखिरी रस्मात करवाई वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। मेरी शादी को 3 साल होने को थे। अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा। मेरा शौहर भी बेटी की पैदाइश पर बहुत खुश था। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ तकसीम की गई। मुझे खुशी थी कि मेरी बेटी की किस्मत मेरी जैसी ना थी। मेरे भाइयों की भी माँ ने शादियाँ कर दी थी। भाभियाँ भी बहुत अच्छी थी। मेरे भाई और भाभियाँ अम्मा का बहुत ख्याल रखते थे। आज हम सब अपने घर में बहुत खुश थे। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।